Okay, guys. So I'll just repeat it once so you can all have this clear understanding. Anaerobic respiration without oxygen, it happens through the bacteria present like in plant, human, and animals all, because bacteria they perform anaerobic respiration. Now for example E. coli और Clostridium मैंने बताया इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ह्यूमंस की बॉडी में, ठीक है. दे परफॉर्म द सो बेसिकली अगर हम ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हेल्दी रखते हैं, हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं. But if we eat the contaminated food or drink cold water, then we get the stomach pain and all because of these bacteria. Now there are two main processes of anaerobic respiration, that is glycolysis and fermentation. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, सिर्फ दो ही प्रोसेस है यहाँ पर. वहां पर जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा वहां में हमने तीन प्रोसेसेस पढ़ी थी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. ओके, बट यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगा देन फर्मेंटेशन होगा. ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एंड पायरुविक एसिड बनता है. एंड नाउ we'll understand the glycolysis process. In glycolysis process for the anaerobic respiration, just remember glycolysis is incompletely oxidized. इसमें पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है. क्यों नहीं हो पाता? Can anyone answer to me that question? Why glucose will not be able to oxidize completely? कोई बता सकता है मुझे? Anyone? Just guess. Can anyone tell me? Okay, I'm waiting for a response. How glucose will not be completely oxidized in glycolysis in anaerobic respiration? Let's see if anyone can guess it once. Lakshmi is saying because glycolysis taken place in mitochondria, but there here it occurs in cytoplasm only. Okay, I'll clarify it, but let's hear from everyone. Divya is saying because of no presence of oxygen simply. Okay, perfect. Okay, so we have two responses. Lakshmi is saying glycolysis happens in mitochondria. I'll just clarify, glycolysis happens completely in cytoplasm only, whether it is aerobic or anaerobic respiration. ठीक है, बट इसमें क्या होता है, जब ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, देयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कंप्लीटली. But here in anaerobic respiration, no presence of oxygen. Okay, no presence of oxygen, and that is why it is not glucose is not completely oxidized. तरीके से ग्लूकोज ब्रेक नहीं हो पाता है. दैट इज द रीजन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाते हैं. और जब मॉलिक्यूल पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाएंगे तो व्हाट विल हैपन? एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा? कैन एनीवन गेस? कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? And less amount of energy is produced. Very good guys. Less amount of energy is obtained. क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाया तो कौन सी कैसी एनर्जी मिलेगी? कम एनर्जी मिलेगी than the aerobic one. Less amount of energy is obtained in this type of respiration. मैंने बताया कि इसमें कोई भी हमें रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, जो हमने एरोबिक में पढ़ा था. सिंपल रहेगा ये, ठीक है. So I am saying again, glucose is incompletely oxidized in the glycolysis of anaerobic reaction. Okay, because of no presence of oxygen, so less amount of energy is obtained in this type of reaction. Now in this process, in glycolysis, through the glucose the pyruvic acid is formed. Through the glucose pyruvic acid is formed, and pyruvic acid further, अब pyruvic acid में क्या होता है देखो समझना, ठीक है. सो पाइवरिक एसिड में क्या होगा? पाइवरिक एसिड को अब हम उसमें बैक्टीरिया से मिलाया जाएगा. ओके, पाइवरिक एसिड जो बना है उसको हम फर्मेंटेशन कराएंगे. फर्मेंटेशन में क्या होगा? बैक्टीरिया के साथ उसे मिलाया जाएगा. बैक्टीरिया के साथ जब उसे मिलाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा? एक प्रोडक्ट बन के आएगा, नया प्रोडक्ट बन के आएगा. एंड व्हाट इज दैट? लेट्स अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ईस्ट. ईस्ट जो है हमारा ये है, इट इज अ काइंड ऑफ फंगस. ये फंगस का ही एक टाइप होता है, फंगस, ठीक है. तो होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोलिसिस होता है यहाँ पर. आपको पता है सभी को ग्लूकोज होता है यहाँ पर, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है और वहां पर फिर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस. नाउ ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो इट फॉर्म्स द पाइरुविक एसिड.
तो मतलब ग्लाइकोलिसिस में ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर पाइवरिक एसिड बनता है, और पाइवरिक एसिड से फिर फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा जाता है। ओके, फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया जाता है, बैक्टीरिया लगाए जाते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया डाले जाते हैं, और बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना और एक नए प्रोडक्ट को बनाना, एक नए प्रोडक्ट को बनाना। एंड फॉर एग्जांपल ईस्ट का काम क्या है, ग्रेप से ग्रेप जूस बनाना। ओके, यहाँ पर ग्रेप जूस बनाना, और फर्दर ये सिंपल से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ग्रेप जूस बनेगा। मैं फर्मेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ओनली फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पाइवरिक एसिड तक सभी को आता है पाइवरिक एसिड कैसे बनेगा, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में क्या होगा कि यहाँ पर सिंपली, ठीक है, अगेन आई रिपीट, पाइवरिक एसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू glycolysis, okay, pyruvic acid produced through glycolysis is converted in other organic acids or alcohol with the help of some enzymes called bacteria here in this process, and this process is called fermentation. This entire process is called fermentation, and the product obtained here is alcohol. For example, this is for example, just there are other product, different types of product बने। फिर से बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन होता है, वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से पाइवरिक एसिड बनता है, पाइवरिक एसिड क्या होता है, फर्दर ग्लाइकोलिसिस में जो पाइवरिक एसिड बन गया है उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल में, ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, बैक्टीरिया डाले जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सपोज यहाँ पर ग्रेप से यहाँ पर ग्रेप जूस बनाया गया, अब यहाँ पर बैक्टीरिया इंजेक्ट कराए गए, ईस्ट को इंजेक्ट कराया गया, ईस्ट के फर्मेंटेशन पे क्या होता है, ठीक है, ईस्ट के फर्मेंट, यहाँ पर क्या बनता है, सिंपली व्हाट इज फॉर्म, एल्कोहल, सिंपली एल्कोहल बनता है, यहाँ पर एल्कोहल बनता है। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज से पाइवरिक एसिड बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से पाइवरिक एसिड बना, पाइवरिक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन का एल्कोहल बना, और एल्कोहल किस वजह से बना है, ईस्ट की वजह से, ईस्ट की वजह से एल्कोहल बना है। ओके गाइस, इज दिस क्लियर? दिस इज वन पार्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन हियर। आर वी क्लियर विद दिस? आ गया सर में? और लाइक आई कैन गो बैक and repeat a few things again. Quickly let me know in the chat box if are we clear. I'm waiting. No. About others, Abhishek is saying clear. I can repeat that again. Okay, let's just do one round of repetition again. Okay, quickly we'll do that. Simply carbohydrate से ग्लूकोज बनता है, we know that, we all know that, right? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है यहाँ पर। I'll just quickly change the color of the here. Now this glucose जो बन गया है यहाँ पर, ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में जाता है, वहां पर उसका ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। नाउ दिस ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है, पाइवरिक एसिड बनता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से पाइवरिक एसिड इज फॉर्म्ड थ्रू द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। नाउ पाइवरिक एसिड बनने के बाद अगर ये पाइवरिक एसिड बन गया है और अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती तो क्रेब्स साइकिल में जाता, राइट? वहां पर आपका कोएंजाइम वगैरह से कैसे आपका दूसरा प्रोडक्ट बनता। बट यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ दो ही प्रोसेस इन्वॉल्व है, वन इज ग्लाइकोलिसिस, अनदर इज फर्मेंटेशन। तो पाइवरिक एसिड जो बन चुका है, अब उसका हम फर्मेंटेशन कराएंगे और उसको हम दूसरे प्रोडक्ट में बनाएंगे, एसिड्स या प्रोडक्ट में बनाएंगे, दैट इज एल्कोहल, फॉर एग्जांपल एल्कोहल। एंड तो यहाँ फर्मेंटेशन जो है वो किसकी वजह से होता है, फर्मेंटेशन होता है आपके बैक्टीरियाज के हेल्प की वजह से, बैक्टीरियाज का इन्वॉल्व होना, उसमें बैक्टीरियाज कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस कन्वर्जन ऑफ पाइवरिक एसिड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये किस वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से, फॉर एग्जांपल ईस्ट,
ईस्ट वाले बैक्टीरिया की वजह से ये हो रहा होता है एंड फर्दर एल्कोहल इज फॉर्म्ड, एल्कोहल बनता है, इसकी वजह से एल्कोहल बनता है यहाँ पर, राइट। सो लेट मी सी, परफेक्ट, नाउ वी आर डन हियर। नाउ क्विकली लेट मी नो इफ यू आर क्लियर। अगर किसी को फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्लियर नहीं तो मैं फिर से बता दूं, फर्मेंटेशन एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, समझिएगा जरा। एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपका, मेटाबॉलिज्म रेट एक केमिकल रिएक्शन होती है। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है जो क्या करता है कि चेंज करता है, केमिकल प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस लाता है। केमिकल चेंजेस लाता है कैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसमें अगर हम एंजाइम मिलाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ईस्ट का, यहाँ पर ईस्ट मिलाया जा रहा है ग्रेप जूस में, ग्रेप जूस में ईस्ट मिलाया जा रहा है। तो जब हम कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एंजाइम्स को मिलाएंगे तो वो क्या करते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उसमें उसकी वजह से क्या होता है, उनका पूरा सब्सट्रैक्ट ही पूरा चेंज हो जाता है और वो क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बेसिकली कि एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ द एल्कोहल, और एक नया प्रोडक्ट बन के आता है। और यहाँ पर वो नया प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली सिंपली क्या है वो प्रोडक्ट, एल्कोहल। यहाँ पर उस नया प्रोडक्ट जो सिंपली वो क्या है, एल्कोहल। Okay, I would love to hear from everyone if this is clear or something that I can do it again. जो वाइन और बियर बनते हैं, जो वाइन्स और बियर बनते हैं वो फर्मेंटेशन की वजह से ही होते हैं, फर्मेंटेशन की वजह से होते हैं क्योंकि उसमें केमिकल प्रोसेस है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, एनारोबिकली करता है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है। Okay, I think let me just go through. Okay, perfectly clear for everyone. I'm just hoping if anyone else has doubts, so I will do it again or I'll go ahead. याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, फर्मेंटेशन एक केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस दूसरे प्रोडक्ट में बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पर वो एंजाइम क्या है, ईस्ट है, बैक्टीरिया जो है ईस्ट है, यहाँ पर ईस्ट, ओके, ईस्ट जो हमारा है वहां पर ये बन रहा होता है। नाउ आई विल क्विकली गो अहेड फॉर द परफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, this is one type of anaerobic reaction here, this is one type of anaerobic reaction जहां पर की अल्कोहल बन रहा होता है फर्मेंटेशन से, ईस्ट की वजह से। नाउ देयर आर अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एज वेल। सो ईस्ट की वजह से फिर से कैसे, पाइवरिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल बन गया, ओके। अदर प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं, कैसे, पाइवरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट तो अगेन ग्लाइकोलिसिस सबको पता है, पाइवरिक एसिड बन गया, फर्मेंटेशन हुआ, और फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है, विनेगर बन गया। विनेगर आपको पता है, विनेगर जो फॉर एग्जांपल विनेगर सभी को पता है। मैं एक और चीज एग्जांपल लेता हूँ, लकड़ी के जो छीले से जो पील निकल के आती है, उसके लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको भी आप पता है कि उसको भी रख दो, वो थोड़ा उसमें अच्छा चलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड एक्चुअली बन रहा होता है, एसिटिक एसिड बन रहा होता है ये, दिस इज नथिंग बट द एसिटिक एसिड ओनली, दिस इज नथिंग बट एसिटिक एसिड हियर। नाउ एक विनेगर बन गया, खट्टा होता है, आपको पता है खाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। वाइटामिन जो बनते हैं हमारे, विटामिन जो बनते हैं, जो टैबलेट्स, ये भी एंजाइम की वजह से बनता है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड इज हियर कि कुछ जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए ले के रखा है, इनका काम है कि अगर हम पाइवरिक एसिड में इनको मिला देंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगी, दैट इज फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन की वजह से एक नया प्रोडक्ट बन के आएगा, एक नया प्रोडक्ट बन के आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ, बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको सभी को पता है बायोगैस, पता है बायोगैस, एवरीवन नोज राइट। बायोगैस में क्या होता है बताइए जरा, हम वहां पर काउडंग, वाटर और स्लरी का मिक्सचर रखते थे, तो वहां पर बैक्टीरियाज उसको कन्वर्ट करते हैं गैसेस में, राइट, बैक्टीरियाज उसको कन्वर्ट करते हैं गैसेस में, ठीक है। नाउ दैट प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड फर्मेंटेशन, बट अंडरस्टैंड फर्मेंटेशन इज समथिंग लाइक दैट ओनली, कि बैक्टीरियाज अंडरगो to that process and they convert the product into another
द सब्सटेंस इनटू अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे किसी एक टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट फर्मेंटेशन मींस हियर. Okay, now another example for this. एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारी बॉडी में आरबीसीज जो होते हैं, जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, इनमें क्या होता है, आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. आरबीसीज में यस अजीत, इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मैं बैक्टीरिया मैं कितनी बार यही बोला हूं कि बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ही होता है, तभी तो बैक्टीरिया, क्योंकि देखो बैक्टीरिया और जो वायरसेस, जो बैक्टीरियाज क्या होते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो बिना ऑक्सीजन के ही रहते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत टाइप के बैक्टीरियाज एंजाइम के फॉर्म में रहते हैं जो हमारे डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा है और एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है. एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, जो एरोबिक था उसमें हमारा एयर प्रेजेंस होने की वजह से होता, तो ऑक्सीडाइज हो रहा था, ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा था. बट इन एनारोबिक यहाँ पर रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ नो प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाया पूरी तरीके से. जब वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया, तो जो पाइवरिक एसिड बना है, तो वहां पर दूसरे सब्सटेंस को बनाने के लिए, मतलब एनर्जी निकालने के लिए, याद रखना एनर्जी एक्सट्रैक्शन होगा, तो वहां पर बनाने के लिए फर्मेंटेशन किया जाता है. और वो फर्मेंटेशन होता है, अब सिंस ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए दैट इज व्हाई वी यूज द बैक्टीरियाज को मिलाया जाता है वहां पर, जिससे वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो और वो कन्वर्जन हो जाए दूसरे एक सब्सटेंस में. फॉर एग्जांपल विनेगर एंड विटामिन. अनदर एग्जांपल हियर, एरिथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो इसमें जो आपका एरोबिक है वो नहीं हो सकता, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो नहीं सकता. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक हो नहीं सकता. तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ग्लाइकोलिसिस से पाइवरिक एसिड बनता है, उसमें फिर से फर्मेंटेशन होगा एंड फर्दर लैक्टिक एसिड बनता है. फॉर एग्जांपल जो बैसिलिया होता है, लैक्टोबैसिलिया होता है, जो मिल्क में जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो पाइवरिक एसिड अगेन वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं. दे फॉर्म दी लैक्टिक एसिड हियर. ओके, तो ये एक और टाइप का हो गया आपके लिए एग्जांपल हो गया. मैंने बता दिया कि ईस्ट से और क्या क्या बन सकता है, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं थ्रू द फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड बता दिया, विनेगर बता दिया आपको. ठीक है, विनेगर हो गया आपका, विटामिन हो गया, और यहाँ पर एल्कोहल कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन through the anaerobic respiration. Okay, are we clear here? Quickly let me know. Do we have some sort of understanding here? I would love to hear from everyone else quickly. Has clear. What about others? Okay. Further we go ahead. Sanya, some part is confusing, don't worry, it's completely fine. ऐसे समझ लो कि इसमें एनर्जी तो प्रोडक्शन हो ही रहा है, साथ ही साथ नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्योंकि बैक्टीरिया का इन्वॉल्व है तो उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है, मतलब सड़ रहे हैं, समझ करो, सड़ के नया प्रोडक्ट बन रहा है. ओके, तो वो फर्मेंटेशन हो रहा है वहां पर, तो नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं थ्रू द बैक्टीरियाज, इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियाज हियर. नाउ फर्दर, अभी दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, कि अभी क्या होता है समझिएगा. सम हायर प्लांट्स, समझिएगा, एनिमल्स, एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन. याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अस, जैसे लाइक ह्यूमंस, वी आल्सो परफॉर्म एनारोबिक respiration. And how do we do that? I'm going to explain you in like next 2 minutes. Instead of aerobic respiration, if there is depletion of oxygen level in the surrounding, for example, जब हम exercise कर रहे होते हैं, when we are doing some heavy physical exercise, running जैसे कर रहे थे, running, suppose करो आप running कर रहे हो, ठीक है, running में क्या होता है, आप हाँफते हो, राइट, आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, राइट. जब आपकी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो थिंक अबाउट इट, वहां पर
एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है उसमें कम हो जाए, जितना रिक्वायरमेंट है उससे हमें कम ऑक्सीजन मिले। सो हाउ डू वी गेट द एनर्जी देयर? चलिए बताइए, हाउ डू वी गेट द एनर्जी देयर? जस्ट गेस इट, लाइक थिंक अबाउट इट थोड़ा सा एंड लेट्स डिस्कस कि हाउ डू वी गेट द एनर्जी देयर? अगर वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है रनिंग में, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज में, देन हाउ डू वी हाउ आवर बॉडी गेट्स द एनर्जी? कैसे कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी एनर्जी? थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस. This is all about respiration. Let's hear from some of you. If you have any idea, like if you have read already, had some pre-reading, anything. I'm hoping to hear from everyone here. Anyone? Message, chat box, anything is fine. Amit is saying converts protein and lipids into energy. No, no, no. That is another aspect of it. Yes, we do that, but that is another aspect of it. वो तब होता है जब हम खाना नहीं खाते हैं अमित. When we do not eat food, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, तब की बात कर रहे हैं, तब के लिए है वो कि लिपिड और प्रोटीन और लिपिड से एनर्जी ले लेगा बॉडी. ठीक है. हियर आई एम सेइंग कि ऑक्सीजन लेवल अगर कम हुआ तो क्या होगा? अगर हमें थोड़ा सा कम ऑक्सीजन मिल रही है, सपोज करो, आकाश is saying it uses anaerobic respiration. And how does that happen? Anyone, any idea? चलिए समझते हैं. तो जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल का डिप्लीशन होता है, कमी हो जाती है. ठीक है. तो हमारी बॉडी करती क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो ये सिंपल सा ग्लाइकोलिसिस होगा, पाइवरिक एसिड बनेगा और फर्मेंटेशन होगा ना. होता क्या है यहाँ पर, जो लैक्टिक एसिड जो यहाँ पर लिखा हुआ उसको भूल जाओ, यहाँ पर कम एनर्जी बनती है. मतलब कि हमारी बॉडी मसल जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी का काम चल जाता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन से काम चल जाता है, थोड़ा सा कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. होता कैसे? फिर से पाइवरिक एसिड के बाद फर्मेंटेशन हो रहा होता है, तो बॉडी में जो भी लैक्टिक एसिड, जो अभी पिछले मैंने स्लाइड में बात की थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने बोला था आरबीसीज का जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन रहा है फर्मेंटेशन. तो सिमिलरली यहाँ पर इसीलिए हमें टायर्ड महसूस करते हैं, वी फील टायर्ड. तो हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, दैट वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एक्यूमुलेट हो रहा होता है. एंड दिस गिव्स अस द टायर्ड एंड वी फील टायर्ड ऑफ दिस. हम वी स्टार्ट फीलिंग द टायर्ड. नाउ जैसे ही हमारी बॉडी एक्सरसाइज कम करते हैं, जैसे भी स्टॉप डूइंग द एक्सरसाइज, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल वापस बढ़ जाता है, तो फिर हमारी बॉडी वापस से एरोबिक रेस्पिरेशन में आ जाती है. एंड दैट इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स हियर. ओके. एनर्जी बनता है. ठीक है. दैट इज द थ्री डिफरेंट थिंग्स हियर, एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब तक के लिए आवर बॉडी इज परफॉर्मिंग हैवी एक्सरसाइजेस, वी गो थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे क्वेश्चन कि हाउ डू वी यू नो कीप वर्किंग, और लाइक हाउ डू वी गेट एनर्जी व्हाइल डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइजेस हियर. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हमारी बॉडी परफॉर्म करती है. Okay, and through that we get the energy, but also we feel tired at the same time because of the accumulation of the lactic acid. Lactic acid के जमा होने से we feel tired. Now, ठीक है. तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड, एक बार और बता देता हूँ, ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है. इसमें क्या होता है, सेल जो करती है, सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करती है यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या करती है, सेल विदाउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही होती है एनर्जी थ्रू दिस. ओके. हमारे ब्लड में बोल सकते हो, यू कैन से कि हमारे ब्लड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और हमारे लाइक रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में, और हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड क्या होता है, पाया जाता है. तो उसको वहां पर बन के दैट्स हाउ वी यूज द एनर्जी. एंड वंस एज सुन एज वी गेट द ऑक्सीजन कम बैक, लाइक कंप्लीटली थोड़ा सा स्टॉप करने के बाद, आवर बॉडी परफॉर्म्स द एरोबिक रेस्पिरेशन अगेन. नाउ सीड जर्मिनेशन जो होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, वो भी एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है. जब वो सॉइल के अंदर होता है, वाटर भरा होता है वहां पर, सो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है वो,
और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस तो कर नहीं सकते अंदर सॉइल के, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस संभव नहीं है. So inside the water it does not get enough oxygen and their anaerobic respiration performs. Again it performs the anaerobic respiration here. Anaerobic respiration here, again here. So this is all about anaerobic respiration. And if I have to summarize everything, I will use this clearly. We can conclude कि glucose जो है that goes under the oxidation. This completely goes under the oxidation, and that process which performs the oxidation of glucose is called glycolysis. Glycolysis से बनता है pyruvic acid. Pyruvic acid दोनों में कॉमन है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, एनारोबिक रिएक्शन है, और ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म में होता है. ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज परफॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म. जस्ट रिमेंबर, ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म. तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एनारोबिक टाइप का रिएक्शन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और वहां पर क्या क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, जो अल्कोहल की बात की थी, लैक्टिक एसिड बनेगा, फर्मेंटेशन होगा, लेस एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, बट वो वर्किंग लाइक हो. इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा एनारोबिक परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड आवर बॉडी डिपेंड्स ऑन द एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया. ग्लाइकोलिसिस के बाद कहां पर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जो फर्दर रिएक्शन करेगा. और यहाँ पर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है. वहां पर क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. फॉस्फेट ग्रुप के ब्रेक होने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल के आती है, एंड दैट इज व्हाट? aerobic respiration. So these are the basic two differences, like the base, just to understand the difference between the aerobic and anaerobic and summarize this. So quickly let me know if you have the clear idea of this, if you have understood. Anaerobic respiration में याद रखना, कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में बात नहीं किया. इट्स ऑल अबाउट थ्योरी. थ्योरी में हम अब समझ गए हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी, बॉडी परफॉर्म करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी. ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ग्लाइकोलिसिस में, वो बट इनकम्प्लीट होता है. इट्स इनकम्प्लीट इन ग्लाइकोलिसिस. सो पाइवरिक एसिड बनता है. पाइवरिक एसिड का इसलिए हम उसको नैस प्रोडक्ट में बनाने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं? फर्मेंटेशन कराते हैं. फर्मेंटेशन में वी इंट्रोड्यूस इट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, और वहां पर नए नए प्रोडक्ट बन के आते हैं, जैसे विनेगर बन गया, विटामिन बन गए, और माइक्रो आपका ये मसल सेल्स में जैसे बताया मैंने, एनर्जी के लिए हो गया. ईस्ट अल्कोहल बनाता है, लैक्टिक एसिड बनता है. तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. जस्ट रिमेंबर, हमारी मसल्स में जो एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज है हमारी मसल्स, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है. यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली अकर्स इन साइटोप्लाज्म. just remember, it can be found only in cytoplasm. I will write it here. It can be found only in cytoplasm. Okay, it can only be found in cytoplasm. Just remember this clearly. साइटोप्लाज्म में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक का सिर्फ ग्लाइकोलिसिस तक साइटोप्लाज्म में होता है. उसके बाद सारी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है. सो देयर वी गेट द, and here that is why less amount of energy is produced. Because यहाँ पर complete नहीं हो पाता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है, so it produces less amount of energy. But that is why most of the microorganism perform anaerobic respiration, and most like us human body, animal body, mostly they perform aerobic respiration, but all of us perform anaerobic respiration in some ways. So are we completely clear with this? So I will ask two questions now. If everyone has understood, so I'm going to ask two questions and we'll complete this today's part. Quickly let me know if we have understood this completely clearly. Just remember, हम कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहे थे यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला बॉडी को, तो यहाँ पर क्या होगा कि लिपिड और प्रोटीन, फैटी एसिड, फैट से आपको एनर्जी मिल जाएगी. जस्ट रिमेंबर, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं की हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की है, जहां पर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है हमने उसकी बात की है.
याद रखिएगा, ठीक है? ओके, परफेक्ट. सो आई एम गोना आस्क दोस टू क्वेश्चंस नाउ. First one is, which type of cellular respiration performs complete oxidation of glucose? Now you will answer me, which are the two types of cellular respiration? Let's see who answers first. Which are the two types of cellular respirations? Which are the two type of cellular respiration? Do we have a response for that? Amit is saying aerobic and anaerobic. Okay, very good, Sanya. Aerobic and aerobic. Now, which type of cellular respiration performs complete oxidation of glucose? Very good, Akash. Now, which one does? Sanya says aerobic. Perfect, aerobic. अभी अभी हमने पढ़ा कि anaerobic में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है, बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है. वेरी गुड गाइस. Okay, I have good number of responses here. Next one is, which cell organelle is necessary for complete oxidation of glucose? Chaliye, let's see who answers this. Which cell organelle is necessary for complete oxidation of glucose? We have the response from Divya, Akash, Lakshmi. Perfectly, very good, guys. Mitochondria, amazing. Yes, mitochondria is required for. So the first question's answer is aerobic respiration. Okay, with there the complete oxidation of glucose happens, and the second answer is mitochondria. Mitochondria में क्या होता है? आपका पूरी तरीके से कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, जहां पर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो एक्सपेंशन होता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर. एंड वी फाइनली हैव कंप्लीटेड द रेस्पिरेशन पार्ट. एंड इन 1 second, I'll just stop sharing this screen.